So today another part of your optics chapter is going to be discussed, which is interference. And I know every one of you must have read this chapter, this topic in your integrated studies, intermediate studies. Okay, so before going to your interference, we must discuss certain topics in interference which must be covered up before going to your main part of the interference, which is known as Young's double slit experiment. Okay, so Young's double slit experiment jiba पूर्व आमे आगे interference पाई केते गुडा term discuss करिवा. For example, what is superposition principle, what is coherent sources, how coherent sources are produced, what is phase and path difference relationship, and what is interference, how interference are being observed in our daily lives, and condition for your interference, how interference has taken place, what is the maxima minima, what is the fringe width, how constructive interference are formed, how destructive interference are formed, etc. will be discussed under condition for your interference. After knowing these 5 subtopics, we will go to the last and the experimental observation of interference, which was being demonstrated by your scientist Thomas Young. That experiment is known as your Young's double slit experiment. Okay, so interference is generally represents the wave nature, wave character of the light. Means here light will act as wave. Okay, after interference we will discuss about Newton's ring, your interference from thin slits, thin films, etc. So these are all representation of wave character of light. Okay, so before going to wave character of light, you must have knowledge about your wavelength, frequency, amplitude, displacement, phase difference, phase angle, etc., which are being discussed in your intermediate studies. Okay, तो तुम्हें वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट जीवा पूर्व ये सब विषय ज्ञान रखा निहाती जरूरी. वेवलेंथ कौन, एम्प्लीट्यूड कौन, फ्रिक्वेंसी कौन, डिस्प्लेसमेंट कौन, फेज डिफरेंस कौन, एटसेट्रा, जो गुड़ा कि तुम प्लस टू डिस्कस होगा आउ थे निहाती पढ़. अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट लगे चैप्टरटा. सार डिस्प्लेसमेंट गोटे कौन कहीदे, डिस्प्लेसमेंट तो यही डायरेक्शन जा दरकार, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बेटर आज का वीडियो रे मु केवल कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस पर्यंत पढ़ेबी. बुझे ना केमती आम ऑब्जर्व कर, तो सही टाइम भितर तुम यही सब को कैप्चर करने ट्राए कर. देन आम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जा, मुझे तार ऑब्जर्वेशन कहबी एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन विल आल्सो बी डिस्कस्ड. ठीक अच्छे, तो फास्ट आम हेडिंग करवा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड विल डिस्कस अबाउट योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. समस्ते यहाँ लिखी नब निहाती है, वीडियो को बैक करके हो, पॉज करके हो, आमे कौन कौन डिस्कस करवा से गुड़ा जानिबा भी जरूरी ना. सो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मु नोट्स रे सब लिखी, खाली डिस्कस करवा. नोट्स रु तुम पीडीएफ रु तुम लिखिदेव. ठीक अच्छे. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, कौन कहला है प्रिंसिपल? In this, according to this principle, two or more waves superimpose on each other to form a new resultant wave. दीटा बा दीटा रो अधिका वेव रहिबे, सुपरिम्पोज करिवे, से माने गोटे नुआ रेजल्टांट वेव क्रिएट करेंगे. रेजल्टांट वेव को मीन्स से सम रु आसीपे, डिफरेन्स रु आसीपे, एटसेट्रा. तो सेटा को आम रेजल्टांट वेव बोली कहले. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टू और मोर वेव सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू रेजल्टांट वेव हुज डिस्प्लेसमेंट
at any instant must be equal to the vector sum of the individual displacement of the two waves. कौन बुझिले आमे बुझिले कि दीटा और दीटार अधिका वेव कौन है सुपर इम्पोज करके गोटे नुआ रिजल्टांट वेव देवे से जो रिजल्टांट वेव रो डिस्प्लेसमेंट आमे देखिबा एट एनी इंस्टांट जो भी टाइम रे देखो सेही टाइम रे बाकी दी जन को वेव रो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट रो वेक्टर सम होबो एल्जेब्रिक सम नहे वेक्टर सम मींस प्लस हे पारे माइनस हे पारे किछि भी हे पारे असुविधा नहीं तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल दीटा और दीटार अधिका वेव सुपर इम्पोज हो पारे एवं तार डिस्प्लेसमेंट आसीबो डिस्प्लेसमेंटा वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हम कथा बुझीगला ता माने कौन सपोज y होची कौन रिजल्टेंट वेव रो डिस्प्लेसमेंट y1 वेक्टर दे देबा डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी आ y2 वेक्टर कि वेक्टर सम हो वेक्टर नदेले ठीक हेनी बुझे ना तो y1 एंड y2 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल waves. So according to superposition principle your y vector must be equal to y1 vector plus minus vector sum होची प्लस हे पारे माइनस हे पारे डिपेंड ऑन डायरेक्शन y2 वेक्टर ये कहला कौन ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहला बुझेला एटा कौन पाए हला दीटा वेव्स फॉर टू वेव्स फॉर मोर देन टू वेव्स योर resultant wave displacement will be like this y vector is equal to y1 vector plus minus y2 vector plus minus y3 vector plus minus चलिए बुझीला ताले resultant wave रो displacement vector sum of the individual displacement हम बुझिउछ मो कथाटा ताले हमें बुझिले कौन दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बुझीला मो कथाटा देन अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज ऑफ two types कौन सी दीटा टाइप फर्स्ट वन इज योर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कौन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ठीक अच्छे एंड अनदर वन इज योर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन आगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन विषय रे कहि दिए देन आमे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन विषय रे जिबा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन रे कौन हबो when two waves of same wavelength कौन अच्छी समान wavelength अच्छी they have same wavelength when two waves of same wavelength superimpose on each other but in phase माने सपोज ये गोटे वेव गला वेव रो क्रेस्ट क्या को कह जाए एगुड़ा को या को ट्रफ कह जाए क्रेस्ट ट्रफ चलिए तो टू वेव्स रो सेम वेवलेंथ अच्छी क्रेस्ट ऑफ द वन फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर ट्रफ ऑफ द वन फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर देन आम कहवा फेज डिफरेंस से देन व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर व्हिच हैव सेम फेज that means trough of the one falls on the crest of the other crest of the one falls on the crest of the other trough of the one falls on the trough of the other then that type of superposition is known as your constructive superposition ताको कौन कहला constructive superposition कहला सेठी एडिशन आसीबो तो constructive superposition रे कौन हुए amplitude after superposition increases amplitude of the resultant wave increases after superposition and जदि एम्प्लीट्यूड बढ़ुची योर इंटेंसिटी विल आल्सो बी इंक्रीज्ड इंटेंसिटी टा कौन हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लीट्यूड रो स्क्वायर ये भी पढ़ाई प्लस टू रे ये भी पढ़ाई इवेन ये इंटरफेरेंस भी थिला तुम प्लस टू रे तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लीट्यूड स्क्वायर देख एक्सपेरिमेंट रे आमे इंटेंसिटी को ही ऑब्जर्व करूँ बुझुच ना इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कला पर बाकी जिनस गुड़ा को आम कैलकुलेट कर वेवलेंथ ये सी सब जिन बाहर तो इंटेंसिटी आम जानिले एम्प्लीट्यूड स्क्वायर तो मुझे कहली कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन रे एम्प्लीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस आफ्टर सुपरपोजिशन दैट मीन्स योर इंटेंसिटी विल आल्सो बी
इनक्रीज्ड बुझेला ना नहीं मो कथा बुझे मो कथा ताले आमे कौन कले सपोज दीटा वेव नेले ठीक है ना दीटा वेव नेले ये हूँ वेव नंबर 2 आ गोटे वेव नहीं नेले वेव नंबर 1 वेवलेंथ समान अच्छे ना नहीं बुझे सो यार डिस्प्लेसमेंट आम नहीं नेले y1 है यार डिस्प्लेसमेंट आम नहीं नेले y2 ये हूँ वेव नंबर 1 ये हूँ वेव नंबर 2 सुपरपोजिशन रे कौन हम क्रेस्ट ऑफ द वन फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर ट्रॉप ऑफ द वन फॉल्स ऑन द ट्रॉप ऑफ द अदर क्रेस्ट ऑफ द वन फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर तो आफ्टर सुपरपोजिशन वी विल फॉर्म एनदर वेव वेक्टर सम होची प्लस आसुची ताने तार डिस्प्लेसमेंट कौन हम बढ़ी जीवा so you will find displacement this y whose value is y1 plus y2 बुझेला ना नाम कथा बुझे नेक्स्ट जीवा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखि दूची सब लिखिच तो किसी असुविधा भी नहीं बुझी दियो नोट्स रे अच्छी लिखिदेव किसी असुविधा नहीं कोर्स हाँ पूजा छुट्टी पर्यंत कॉलेज बंद बुझे जहाँ ये पढ़ा होटा को बेस कर पढ़ा पड़ो पूजा छुट्टी पर भी कॉलेज खोल कि नहीं जना ना तो बहुत चांस अच्छी कॉलेज खोल मात्र एग्जाम हम जहाँ पढ़ुची जहाँ करने कौच ट्राए करने नहले हैरान हो मोर किसी कहबार ठीक अच्छे देन आम जा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अक्षर समस्त भिजिबल हो तो ना गोटे बड़ लिखा कह नेक्स्ट वीडियो को मत ठीक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रे कौन हम ना व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम वेवलेंथ समान थिबा दरकार सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर बट इन आउट ऑफ फेज थे आउट ऑफ फेज मीन्स क्रेस्ट ऑफ द वन फॉल्स ऑन द ट्रॉप ऑफ द अदर ट्रॉप ऑफ द वन फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर देन दैट टाइप ऑफ सुपरपोजिशन इज कॉल्ड एज योर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कौन कहली दीटा वेव रहा जनकर क्रेस्ट उपरे आउ जनकर ट्रप आसुची जनकर ट्रप उपरे आउ जनकर क्रेस्ट आसुची देन जो सुपरपोजिशन पालन हम दैट इज नोन एज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख देली ना सुपरपोजिशन दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन आगे सुपरपोजिशन बुझी सार देन आम इंटरफेरेंस बुझा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन तान डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कौन है दीटा वेव नवा ये गोटे क्रेस्ट ऑफ द वन फॉल्स ऑन द ट्रॉप ऑफ द अदर बहुत छुआ डाउट हम सर आप सेम टाइप वेव कले कह सेम टाइप वेव कले कौन हम तो दिस इज सपोज वेव नंबर 1 योर डिस्प्लेसमेंट इज y1 दिस इज वेव नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट इज y2 ठीक अच्छे देन देयर resultant wave will be like this ठीक अच्छे जार डिस्प्लेसमेंट हो y the value of y will follow the superposition principle like this y1 minus y2 so in destructive interference your amplitude decreases after superposition ताने amplitude कौन करिवो decrease करिवो so as we all know your intensity is directly proportional to the square of the amplitude so intensity will also be decreased intensity भी कौन हम कमी जीवो in destructive superposition then ये जो मुझे कथाटा कहली ना कहीं सेम टाइप वेव कले वेव नंबर 1 वेव नंबर 2 if wave number 1 and wave number 2 have displacement y1 और y2 equal but out of phase then जो resultant wave बाहर तार एम्प्लीट्यूड विल बिकम 0 तामाने जदि आम ये वेव धरिबा आउट ऑफ फेज वाला then your amplitude will become 0 so amplitude 0 माने intensity will also be 0 बुझी मो कथाटा so this is all about your superposition टिके खाली ध्यान दे दियो नेक्स्ट आम पढ़ा कौन थिला एडी सेकेंड रे कौन थिला कोहेरेंट सोर्सेस
है। सो आमे सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करवा, सेकेंड सब टॉपिक को डिस्कस करवा। सेकेंड सब टॉपिक आम कौन थिला, कोहेरेंट सोर्सेस। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट इनकोहेरेंट दुटा जिनस अच्छे, मुझे खाली कोहेरेंट डिस्कस करी, इनकोहेरेंट डेफिनेशन कहीदेवी, तुम जानी रखा दरकार। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेस, व्हेन टू सोर्सेस ऑफ लाइट हैविंग लाइट ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी और सेम वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी समान रही माने वेवलेंथ समान रही, केमती जानली अरे फ्रिक्वेंसी आउ ये फॉर्मूला कौन थिला, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, सी इज ए कांस्टेंट, ये जदि समान है फ्रिक्वेंसी समान हम μ1 और μ2 इक्वल है लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 इक्वल हेनी, ताने इफ टू सोर्सेस ऑफ लाइट हैविंग लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ एंड आर इन फेज विथ इच अदर, दुईज फेज रे थिबे और ताको भीतर गोटे कांस्टेंट फेज डिफरेंस थिबो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस मीन्स फाइ इज इक्वल टू पाए, फाइ इज इक्वल टू 2 पाए, फाइ इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेवटा से 30 डिग्री फेज डिफरेंस मेंटेन करके चलती हो कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोपागेशन ऑफ द वेव, देन ओनली आमे सेई टाइप रो सोर्सेस का जो दुईटा सोर्स कथा कहली दैट विल बी कॉल्ड एज योर कोहेरेंट सोर्सेस। ताने कोहेरेंट सोर्सेस मु कहा कहबी टू वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी सेम वेवलेंथ constant phase or in phase with each other, then the two sources are called as coherent sources। बुझेला मो कथा, कोहेरेंट सोर्सेस जेनेराली दुईटा डिफरेंट सोर्स नेले तैयारी करबा बहुत कष्ट, तुम जिते ट्राए कर गोटे सोर्स निहाती फेज आगुआ रही जी कि आगे आगे पड़े जीवो एवं नेक्स्ट वेवटा निहाती पछर रही जीवो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन होबनी, और इमिति हे पारे दुईटा सेम सोर्स नहीं नेले ट्राए कले बट वेवलेंथ डिफरेंट हे पारे, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हो पाए, किसी ना किसी प्रोब्लेम आस आम कौन ट्राए करूँ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सोर्स रु कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करा जाए। केमती कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करा जाए कही दूसरी, देख सपोज दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, एठो लाइट बाहर, लाइट रे आम थ्योरी पढ़ी पढ़ी आसचे कि सबू डायरेक्शन को समान एनर्जी से दब, समान एनर्जी माने कौन, समान वेवलेंथ समान फ्रिक्वेंसी, मो कथा बुझी होची कहीं ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच बाय लैम्बडा, तो सेम सोर्स पेरेंट सोर्स रु कौन कला लाइट सब डायरेक्शन को गला, आम ये कौन कले दुईटा स्लिट रखदेले, दुईटा स्लिट रखदेले ठीक अच्छे ना, सोर्सटा मझे रखदवा है, दिस इज पेरेंट सोर्स लिखी दियो, पेरेंट सोर्स पेरेंट सोर्स लाइट जाऊँगी, ये हूँ स्लिट S1, ये हूँ स्लिट S2, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट कथा आसला, वेव फ्रंट ये भी लिखो, व्हाट इज वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल थिला, हाइजेंस वेव फ्रंट प्रिंसिपल थिला नी, सो व्हाट इज वेव फ्रंट व्हाट इज हाइजेंस प्रिंसिपल सेटा भी देखी दबा दरकार ये क्लास होला पर, ताले कौन है स्पेरिकल वेव फ्रंट आसला ये, स्पेरिकल वेव फ्रंट रो ये हम सपोज कले दुईटा लाइट वेव नेले, तो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस टू फाइन स्लिट S1 और S2 जो दुईटा लाइट वेव बाहर, जो दुईटा लाइट वेव बाहर से फ्रिक्वेंसी समान थी, से वेवलेंथ समान थी, से इधर इन फेज थे और कांस्टेंट फेज डिफरेंस रे मूव करेंगे, सो दिस S1 आउ S2 को आम कौन कहले कोहेरेंट सोर्सेस कहते, मो कथा बुझीगला ना नहीं, गोटे सिंगल पेरेंट सोर्स नेले है, लाइट वेव सबू डायरेक्शन को जाऊँ, सपोज दिस सोर्स क्रिएटिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, पढ़ी तो यह सब जिन प्लेन वेव फ्रंट स्पेरिकल वेव फ्रंट बुझे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट रु लाइट कौन कला पास कला स्लिट S1 स्लिट S2, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस टू स्लिट कौन कला लाइट वेव प्रोपागेट कला, तो आफ्टर दिस स्लिट पासिंग थ्रू द स्लिट S1 S2 जो दीज वेव बाहर से फ्रिक्वेंसी से वेवलेंथ समान फेज रे रही पारती और कांस्टेंट फेज डिफरेंस तो आम S1 और S2 को कौन कह कोहेरेंट सोर्सेस कहवा, बुझीगला मो कथा, कोहेरेंट सोर्सेस पढ़ा बुझीगले, तो कोहेरेंट सोर्सेस रु ताले S1 S2 दीज कोहेरेंट सोर्सेस है, देन पढ़िया मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस, वन इज योर डिविजन ऑफ वेव फ्रंट, डिविजन ऑफ
and another one is your division of amplitude. दीटा वे रे आमे प्रोड्यूस करि परिबा कोन कोहेरेंट सोर्सेस को। इस साइड लिखि सकती हो। तो two methods of producing coherent sources one is your division of wavefront, another one is your division of amplitude. First हमें पढ़िबा division of wavefront. wavefront division रो केमते हमें coherent source create करि परिबा। ठीक अछि। Suppose आमे जो source नेले that is a point source, that is a point source. तो point source रो light आसेला एगेन मुझे दीटा स्लिट रे पास कली दीटा स्लिट रे पास कली माने मोर दीटा डिफरेंट डिफरेंट कौन है वेवफ्रंट आसला फ्रॉम स्लिट 1 फ्रॉम स्लिट 2 जदि मु सेही दीटा वेवफ्रंट को सुपर इम्पोज करी देन आई विल गेट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड रिजल्टेंट वेव ताले मु सेठु कोन कली वेवफ्रंट डिवीजन रो भी मु कोहेरेंट सोर्सेस जनरेट करी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पकई कि रिजल्टेंट वेव पाइली आ इंटरफेरेंस पैटर्न मत तैयार ही पाला बुझी। तो दिस टाइप ऑफ वेवफ्रंट डिवीजन कोहेरेंट सोर्सेस आर जनरली यूज्ड इन योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जोटा आम ये पढ़ा। सेकेंड रे कौन आसीबो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म रे पढ़ा जोटा भी तुम अच्छी एंड थर्ड पढ़ा लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। तो तीनटा जगह कौन करा जाए ना वेवफ्रंट डिवीजन मेथड रे कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करा जाए बुझीला मो कथा। देन आम जा कौटी ना योर एम्प्लीट्यूड डिवीजन। एम्प्लीट्यूड डिवीजन रे कौन हुए एम्प्लीट्यूड डिवीजन रे इनकमिंग वेव रो एम्प्लीट्यूड को दी भाग रे भाग करा जाए हला इनकमिंग वेव रो एम्प्लीट्यूड को दी भाग रे भाग करा जाए डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देन आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट्स से माने जो दीटा वेव क्रिएट कले से माने को कोहेरेंट सोर्सेस बोली कहला से माने को सुपर इम्पोज कराला तांकर एम्प्लीट्यूड इंक्रीज होबो देन आमे पुनी इंटरफेरेंस पैटर्न पाई परिबा। तो ये जो एम्प्लीट्यूड डिवीजन को जगह रे कोहेरेंट सोर्सेस हिसाब रे यूज करा जाए एग्जांपल नबा फास्ट होची तमरो इंटरफेरेंस एट थिन फिल्म्स सॉप बबल कथा पढ़ाबो एटा बोध हुए अछि कि नहीं मु देखि देबी। देन सेकंड अछि कोन न्यूटन्स रिंग जोटा कि तुम कोर्स रे अछि एंड थर्ड इज योर माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर जोटा नाही इंटरफेरोमीटर तुम ना। इंटरफेरोमीटर मीन्स जे इंटरफेरेंस क्रिएट करे तापाई स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट अच्छी फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर एटसेट्रा। ताने वेवफ्रंट डिवीजन रे पॉइंट सोर्स रहिबो एथरे रहिबो एक्सटेंडेड सोर्स ठीक अछि ना एक्सटेंडेड सोर्स लंबा थिबो बहुत बड़ सोर्स थिबा दरकार देले एम्प्लीट्यूड डिवीजन हे परिबो। ताले एठी को जगह यूज कराला भी आम देखीदे एठी यूज कराला वेवफ्रंट डिवीजन ताले एठी तुम क्लियर हो जाओ जे आम जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा से जो कोहेरेंट सोर्सेस यूज होबो दोज आर मेड अप ऑफ योर वेवफ्रंट डिवीजन मेथड बुझीला मो कथा। ताले 2 नंबर पॉइंट डिस्कशन सरीला व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेस। देन जीवा रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस ये रिलेशनशिप प्राय समस्त को जना थी खाली टे रिकल करदे रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। सो आम देखिए कौन ना रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो आम यूनिटरी मेथड जानिछ ऐकिक धारा इफ योर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा इफ योर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा देन योर फेज डिफरेंस इज 2 pi। इफ योर पाथ डिफरेंस इज 1 then your phase difference is 2 pi by lambda. If your path difference is some other value, let del x, then your phase difference ताको ना दे दिया phi is equal to 2 pi by lambda into del x.
2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल एक्स ताने कौन फॉर्मूला पाइले फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस मन रही फॉर्मूलाटा ताने फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस बुझेला सो दिस इज द रिलेशनशिप between phase difference and path difference. Then comes to another subtopic, what is interference. What is interference? So interference is the modification in the distribution of energy, modification in the distribution of energy when two or more waves superimpose on each other. That process is called as your interference. कौन है इंटरफेरेंस रे दीटा बा अधिका वेव सुपर इम्पोज करेंगे दैट मीन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रे काम करेंगे गोटे रेजल्टांट वेव क्रिएट हम दैट रेजल्टांट वेव पाई जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस रे जो मॉडिफिकेशन आसीबो दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन आवर डेली लाइफ. कौन एग्जांपल रास्ता रे खरा दिन रे ठीक अच्छे ना सपोज तुम्हें जाऊँ गोटे इमेजिन कर स्टेट हाईवे सिंपल ब्लैक पूरा पिच ब्लैक रोड कौन हुए बेले बेले ट्रक जीवा बेले मोबिल पड़ जाए ऑयल पड़ जाए ठीक अच्छे ना बहुत जोर खरा हो तुम से ऑयल को ऑब्जर्व कर दैट विल लुक लाइक ए 7 डिफरेंट कलर्स कलरफुल देखा जाए ऑयल जो पड़ी थी से जगहटा दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस. सोप बबल और तुम्हें जो फुंकी की बबल क्रिएट करनी जो मिले से बबल क्रिएट कल एवं तुम्हें सनलाइट सामने रे अच्छो यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इनसाइड दैट बबलटा डिफरेंट कलर्स देखा जाए 7 डिफरेंट कलर्स देखा जाए दैट इज इंटरफेरेंस. ताने सेठी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो गला दैट प्रोसेस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस. बुझेगा मो कथा ना ऑयल जो पड़े रास्ता रे सोप बबल ये दुटा जिन तुम डेली लाइफ रे देखुच दैट इज फिजिक्स. फिजिक्स इज ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना ठीक अच्छे ना तो दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरफेरेंस. बुझेगा. देन आम जा कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस. दिस इज कम्प्लीटली मैथमेटिकल डेरिवेशन. मु कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस रे दीटा वेव ने भी जो मानकर एम्प्लीट्यूड डिफरेंट थी मुझे आंसर कैलकुलेट करदेवी. तुम मानकर काम होची दीटा वेव नब जो मानकर एम्प्लीट्यूड समान थी फेज डिफरेंस था एम्प्लीट्यूड समान थी तुम कर एम्प्लीट्यूड डिफरेंट थी मु करी बट यू हैव टू डू इट. जदि न कर मोर किसी कहबार ना कॉलेज खोलिले एग्जाम हम बुझी हाँ मु प्रूव कर शिखेदेवी ना केमती आसो देन तुम से देखा देखी कर किसी असुविधा ना. जीवा कौन कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस रो कंडीशन देखा अगेन गोटे सिंगल सोर्स अच्छे दीटा स्लिट अच्छी स्मॉल एंगल हवा दरकार वेव फ्रंट डिवीजन होची स्मॉल एंगल हवा दरकार ठीक अच्छे ना ये दुजन भर एंगलटा जिते स्मॉल हो पार से बेटर रिजल्ट आस. गोटे स्क्रीन रहा दिस इज ए स्क्रीन वेयर वी हैव टू एब्जॉर्ब द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आफ्टर इंटरफेरेंस. कौन है सपोज आम यही पॉइंट ऑब्जर्व करवा वेव पास कर अगेन यार वेव पास कला ठीक अच्छे देन यही पॉइंट रे आम ऑब्जर्व करवा इंटरफेरेंस कौन आसूसी ए पॉइंटा ब्राइट आसो ना डार्क आसो आम से जिन ऑब्जर्व करवा ताने S1 S2 टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट बुझेगा. वेव फ्रंट डिवीजन रे आम कोहेरेंट सोर्स क्रिएट कले दीटा वेव पास कर द वेव विल इंटरफेयर विथ इच अदर एट ए पॉइंट P. आफ्टर इंटरफेरेंस व्हाट इज हैपनिंग सेटा को आम देखा. ताले सपोज आम गोटे वेव को नहीं नेले अच्छा वेव मीन्स से मानकर इक्वेशनटा साइन आउ कॉस रे आसो एटा सब मन रख वेव्स हार्मोनिक तो साइन आउ कॉस होचंदी हार्मोनिक फंक्शन तेणु सब बेले वेव मान रिप्रेजेंटेशन साइन आउ कॉस रे हुए. सो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t फ्रिक्वेंसी सामान मुझे कही ना कोहेरेंट सोर्सेस हे y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. सपोज भर गोटे कन्स्टाट फेज डिफरेंस रहा सुपरपोजिशन हम फास्ट. सो y इज इक्वल टू के y1 प्लस y2 देन वैल्यू पुट करदे
A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस 5 sin A प्लस B एक्सपांड कर शिखिछ sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B करदबा A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी cos 5 प्लस A2 cos ओमेगा टी sin 5 देन नेक्स्ट करवा कॉमन क्या को नहीं हो A sin ओमेगा टी अच्छा या को नहीं नवा A1 प्लस A2 cos 5 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin 5 cos ओमेगा टी सरीगला मु कॉमन क्या को नेली A1 sin ओमेगा टी आउ A2 sin ओमेगा टी भितर मु sin ओमेगा टी को कॉमन नहीं नेली A1 प्लस A2 cos 5 हेगला एक गोटे इक्वेशन दे देले सपोज इक्वेशन 2 दे दवा या को इक्वेशन 1 दे दवा ठीक अच्छे अगेन आस लेट क्या धरवा A1 प्लस A2 cos 5 A1 प्लस A2 cos 5 इज इक्वल टू कैपिटल A धरनेली cos थीटा एटा रिप्रेजेंटेशन किसी तरह भाबार नहीं है आउ A2 sin 5 को मुझे धरली A sin थीटा ठीक अच्छे so substituting these values in equation 2 you will get y is equal to A sin ओमेगा टी आगे लिख देली देन cos थीटा लिखली किसी असुविधा अच्छे कि नहीं प्रोडक्ट अच्छी A2 sin 5 बसे देली A cos ओमेगा टी sin थीटा बुझेला नेक्स्ट ए को बाहर को नहीं नियो किसी असुविधा नहीं रही कि sin ओमेगा टी cos थीटा cos ओमेगा टी sin थीटा अगेन sin A cos B प्लस cos A sin B आम कौन पाइले sin A प्लस B तो इट इज अगेन ए हार्मोनिक वेव हियर एम्प्लीट्यूड इज A हियर थीटा इज द फेज डिफरेंस ताले आम गोटे रिजल्टांट वेव पाइले जार किसी फेज डिफरेंस आसला आउ गोटे एम्प्लीट्यूड आसला बट अगेन इट इज एनादर हार्मोनिक वेव या को देदेले इक्वेशन 3 नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ A आम ए रो वैल्यूटा कैलकुलेट करवा ये देखी दियो नेक्स्ट को जावा ठीक अच्छे सांगरे सांगरे लिखुच ना लिखुन जमार टिके लिखिद पर नोट्स देख किसी असुविधा ना जीवा ताले हमर कौन आसीला y इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी प्लस थीटा ठीक अच्छे ना ए हूँ एम्प्लीट्यूड थीटा हूँ फेज डिफरेंस ना वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल A तो आम जो इक्वेशन नहीं ने कौन लेट जो धरी A1 प्लस A2 cos 5 इज इक्वल टू A cos थीटा ताको मु स्क्वायर कर देली कौन आसीबो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2A1 A2 cos 5 अगेन सेकेंडटा को स्क्वायर करवा A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5 एक गोटे इक्वेशन दे दियो सपोज 3 जाइतला एटा को 4A ना दे दियो या को ना दे दियो 4B दीटा को ऐड कर दियो कौन आसो
ए स्क्वायर कॉमन चलीगला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला अनुसार 1 बुझीगला लिखिलेनी इज इक्वल टू नेक्स्ट a1 स्क्वायर रहा प्लस a2 स्क्वायर कॉमन नहीं निया एड हम ना cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 केते आसीबो a2 स्क्वायर बुझी होजी ना प्लस 2a1 a2 cos 5 आसीगला नेक्स्ट we know that your intensity I is directly proportional to A ठीक है सिमिलरली यहाँ भी लिखी पारे I1 is directly proportional to A1 एवढा एम्प्लीट्यूड ना ये लिखिले वेव बेले A1 is the amplitude of the first wave A2 is the amplitude of the second wave similarly I2 को हमें लिखी पारे directly proportional to A2 बुझे स्क्वायर सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी स्क्वायर एम्प्लीट्यूड स्क्वायर को इंटेंसिटी सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए मुझे इंटेंसिटी को प्रोपोर्शनालिटी हटेबी ताले गोटे कन्स्टांट आनी समस्त कन्स्टांट होचे समान के a1 स्क्वायर I2 टा पाई आसला के a2 स्क्वायर ठीक अच्छे तो सपोज मुझे भैल्यूटा को ये पुट करी कौन करी के मल्टीप्लाई कली के कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 के दीटा आसवे के स्क्वायर a1 a2 cos 5 ताले के स्क्वायर कॉमन नहीं है माइनस करि परिबी ताले मु केवल से जगह रे कोन लिखि परिबी आई लिखि परिबी ताले मोर आंसर कोन आसीबो दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos 5 in terms of intensity जोटा कि तुमको एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व हुए तने I1 is the intensity of the first wave I2 is the intensity of the second wave and this is the interference term तने आसीला इंटरफेरेंस आसीला एडी इंटरफेरेंस टर्म बुझियाला मो कथा चले I is equal to I1 plus I2 root over of 2 I1 I2 cos 5 ये जो इंटरफेरेंस ब्राइट हबो ना डार्क हबो ब्राइट हबो ना डार्क हबो ब्राइट केतळे आसीबो जेतळे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अछि मींस दी जण जाको वेव ऐड हेबे आ डार्क केतळे आसीबो जेतळे दी जण जाको वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करिवे मींस माइनस करिवे ता माने से जगहटा कंप्लीटली डार्क आसीबो ताले दीटा कंडीशन एटी पळे आसीला वन इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फुल ना लिखो ना हैला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रे cos 5 रे वैल्यूटा केता हवा दरकार 1 हवा दरकार cos 5 वैल्यूटा 1 हेले cos 5 केतळे 1 हुए जेतळे cos रो वैल्यू m pi फॉर्म रे थाए m इज एनी इंटीजर 0 1 2 3 4 तने cos 0 रो वैल्यू केते 1 2 m pi सॉरी हां काहे के लिख दवा 2 m pi काहे के 0 पकेले m रो वैल्यू 0 आसला cos 0 रो वैल्यू 1 m रो वैल्यू 1 पकेले 2 पाई आसला 1 2 पकेले 4 पाई आसला 1 तो व्हेन phi is equal to 2m pi constructive interference is observed then whenever the phase difference is the even integral multiple of pi or integral multiple of 2 pi then constructive interference is observed in terms of path difference कहबा pi is equal to केते 2 pi by lambda del x हमको del x बाहर करिवार अछि so implies that del x is equal to केते आस जीवो lambda by 2 pi phi phi रो वैल्यू केते 2m pi पुट कर दियो into 2m pi phi pi cancel 2 cancel m lambda then whenever the path difference is an integral multiple of your wavelength of the light then constructive interference is observed बुझेला तने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कोठी पाउचे जानि गले देन जबा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाखो सेकंड कंडीशन कोन आसला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये सब नोट्स रे अच्छी किसी असुविधा ना ठीक अच्छे ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रे कौन हवा दरकार cos 5 रो वैल्यू केते हवा दरकार
cos phi वैल्यू केते होबा दरकार -1 होबा दरकार मिनिमम cos और sin रो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1 तो -1 होबा दरकार केतेबेले -1 होबा जेतेबेले तार वैल्यूटा पाई थिबो 3 पाई थिबो 5 पाई थिबो ताले से पय हमें कंडीशन कोन आनिबा cos 2n - 1 पाई पुट कले देखिबा 0 पड़ले पाई आसला 1 पड़ले सॉरी 1 पड़ले एटा केते 2 - 1 ताले 1 आसला 0 पड़ले माइनस पाई ना ताले प्लस कर देले 0 पड़ले पाई आसला 1 पड़ले 3 पाई आसला ताले 2n + 1 पाई पाई आले ताले whenever your phi is 2n + 1 pi means odd multiple of pi कौन फेज डिफरेंस देन destructive interference is observed in terms of path difference ताको लिखिबा केमते लिखिबा न फाई रो वैल्यू हमें जानि छे 2 पाई बाय लैम्बडा पाथ डिफरेंस del x तो del x रो वैल्यू हमको बाहर कर रहछि del x = लैम्बडा बाय 2 पाई फाई फाई रो वैल्यू केते एटा पुट कर दियो केते 2n + 1 पाई 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 कैंसिल ताने 2n + 1 lambda by 2 whenever your path difference is odd multiple of lambda by 2 destructive interference is observed बुझीला मो कथा सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केतेबेले क्रिएट हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केतेबेले क्रिएट हो इंटेंसिटी आमे केमती ऑब्जर्व करबा कोठी इंटरफेरेंस स्टॉर्म आसीबो दिस इज ऑल अबाउट योर कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस देन नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट एपिसोड रे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़िबा ऑब्जर्वेशन मैथमेटिकल डेरिवेशन दैट्स ऑल थैंक यू।